where the neurodiverse population is constantly taught how to mask and adopt the neurotypical way of life, our aim is to claim public spaces and to raise awareness in order to make the neurodiverse way of life regular. A world where no one has to mask their true self, be bullied, stared at, or feel unaccepted. Assalamu alaikum. I am Mahin Gul and I am the founder of Lahore Autism Center. Generalizations in themselves are detrimental, and more so when they are made about a phenomenon so varying and diverse in nature, such as autism. Our aim is to debunk these myths about autism, raise awareness, claim public spaces, and demand acceptance. Acceptance and celebration. So basically the people we want around autistic individuals are those who are not trying to cure or treat autism, but who are celebrating the autistic individual's existence. We are an initiative, and Lahore Autism Center is one part of that initiative. I will come back to the initiative in a bit. जहाँ तक लाहौर ऑटिज़म सेंटर को बनाने का सवाल है, उसकी बुनियाद रखने का सवाल है, वो मेरा अपना बेटा है फिरोज़, जो अब 10 साल का है और करीब 15 से 18 महीने का था जब हमें उसका फ़र्क होना हमारे ऊपर जाहिर हो गया। और हम तब से ही उसके साथ काम कर रहे हैं, इस तरह के हम उसको दुनिया में बहुत जगह पे लेके गए, वहाँ पे हमने कोशिश की कि जो भी इसको चाहिए मिल सके। मगर लाहौर ऑटिज़म सेंटर इसलिए मैंने खोला बिकॉज मुझे वो चीज़ें उसके लिए नहीं मिली जो मैं चाहती थी कि उसको मिलें। और वो क्या हैं? लविंग एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट, अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर कमिटेड टू सेलिब्रेटिंग ऑटिज़म, and an individual education plan with built-in flexibility. Mainstream schools का जहाँ तक सवाल है, बहुत अच्छे हैं, कुछ इंक्लूसिव भी हैं, मगर उनमें प्रोफेशनल्स की कमी है जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के साथ डील कर सके, जिनको ट्रेनिंग मिली हो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के साथ काम करने की. So again, just to put it out there that mainstream schools do want to help. They have wonderful intentions, but they themselves lack the know-how how to do anything and how to take an autistic or a differently abled individual to the next level. From my own experience, I know that mothers of autistic children, differently abled children, have various thoughts in their minds, various apprehensions in their minds. वो पूरा दिन struggle करती हैं कुछ ऐसे खदशात के साथ जिनको कोई भी कहते हैं ना, we cannot put them at rest, क्योंकि हमारे दिमाग हर वक्त चल रहे होते हैं. कैसे सवालात उठते हैं हमारे दिमाग में कि क्या मेरा बच्चा आज स्कूल में महफूज था या नहीं, क्या मेरे बच्चे के साथ किसी ने कोई ज्यादती तो नहीं की, क्या जो स्कूल ने मुझे वादा किया है कि हम ये कुछ चीजें हैं जो इस बच्चे के साथ रोज करेंगे, क्या वो स्कूल कर रहा है कि नहीं. क्योंकि आपको खुद ये अंदाजा होगा, अगर तो आप किसी ऐसे बच्चे के पेरेंट्स हैं खुद, या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं कि वो हमें आके हर चीज़ नहीं बता सकते. और एज ऑटिज्म इट्स स्पेक्ट्रम, इट वेरीज. सो कोई बच्चा है जो बहुत वर्बल है, हमें अपनी दिन की पूरी दास्तान सुनाएगा, और कोई बच्चा है जो अपने दिल में सब कुछ रखेगा. ऐसे बच्चे के जो माँ बाप हैं, ख़ास तौर पर उनका दिल जिसे कहते हैं ना हर वक्त जकड़ा हुआ है. तो what I wanted to do was to put the apprehensions of such parents, such mothers at rest. कि जी आपका बच्चा महफूज है, आपके बच्चे को वो तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है जो आप चाहते हैं. Being a human rights lawyer myself, over these past many years, many mothers have reached out to me, have narrated the emotional or physical abuse that their children have suffered at the various centers or schools they are attending. And then after that, they do not know what to do or where to go because there is no set system. कोई कानून की किताब खोलें, कोई पॉलिसी की किताब खोलें, उसमें ये नहीं लिखा कि भाई आपके बच्चे के साथ ABC हुआ है तो आप ये नंबर डायल करें या आप इधर कॉल करें. Of course, there are many advances. Thank you to the Human Rights Ministry. We have helplines now, but still parents are not aware कि करना क्या है. And then to top it all off, I have even had parents or mothers actually more so call me, and when I have mobilized the help that they need, they have backed out. They have backed down.
उसकी वजह यह है कि उनको सिक्योरिटी नहीं फील होती। जैसे आप भी अपने आप को उस जगह पे रखें और आप सोचें कि अगर आपके घर में कोई वारदात हो जाती है, कुछ होता है, तो आप 10 दफ़ा पुलिस को इन्वॉल्व करने से पहले सोचते हैं, आप 10 दफ़ा कोर्ट्स के चक्कर लगाने से पहले सोचते हैं। सो द सेम फॉर देम, they are not aware, and then even if they do become aware, they are scared of taking any action. LAC में हमारा सबसे बड़ा जो मकसद और फोकस है वो बच्चों की खुशी और उनकी हिफाजत है। हम इनको दुनिया के लिए उस हद तक तैयार करना चाहते हैं जितना मुमकिन हो, जितना हम इनको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा ये मकसद है इन बच्चों के साथ। सो बेसिकली व्हाट वी डू इज दैट वी प्रिपेयर an integrated academic and therapeutic approach, keeping their challenges and their strengths in mind. Things like transparency, life skills, functionality, all of these are at the forefront. So how do we deal with transparency? How we deal with transparency is that we make sure that all parents have a walk-in relationship with us. All parents have access to the CCTV footage that we have in our front office. अगर वो चाहें तो वो वहाँ बैठकर उस अपने बच्चे को कैमरे में ऑब्जर्व कर सकते हैं. And we also have the option, if a child is in a room in a one-on-one session, that a parent can actually sit inside and observe that session. देखिए, माँ बाप बच्चे की ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा होते हैं. इनको ऐसे बच्चों के लिए जो इस दुनिया के हिसाब किताब से अलहदा हैं, उनके माँ बाप को ख़ास तौर पर ट्रेनिंग देना ज़रूरी है कि जी आपने इन बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, इनकी ज़िंदगी को कैसे आपने कंफर्टेबल करना है. सो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहूँगी कि आप सोचें कि सारा दिन हम स्कूल में 6 घंटे एक बच्चे के साथ विजुअल स्केड्यूल्स फॉलो कर रहे हैं. विजुअल स्केड्यूल्स क्या हैं? बेसिकली हम दीवारों पर तस्वीर और उनके नीचे उस तस्वीर का नाम या उस एक्ट का नाम या उस सेशन का नाम लगा देते हैं. तो बच्चे को पता होता है कि जी अभी पहले फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्यूपेशन थेरेपी करनी है, उसके बाद मेरी स्पीच थेरेपी है, उसके बाद मैंने लैंग्वेज लिटरेसी करनी है, उसके बाद मेरी लंच ब्रेक है, उसके बाद मेरी फिजिकल एजुकेशन है. और जाहिर है इसके बीच में इनको मूवमेंट ब्रेक्स हम देते रहते हैं, बिकॉज आप एक ऑटिस्टिक बच्चे या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारा दिन बैठ के एक डेस्क पे काम करता रहे. वो तो आपको किसी बच्चे से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. सो अब आप सपोज करें कि इतनी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट उसको पूरा दिन मिली और जब वो घर गया तो वहाँ कुछ नहीं है, दीवारें खाली हैं, उस पर अजीबोगरीब सी पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो वैसे ही बच्चे के लिए ओवरवेलमिंग है, उसके रंग और उसके डिज़ाइंस. और बस वो घर घुसा है और उसने इर्द गिर्द देखा है कि जी अब मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, कहाँ है वो क्यू जो मुझे बताएगा कि मैंने आगे क्या करना है. और जब उसको वो नहीं मिलेगा तो बच्चा एक अनस्ट्रक्चर्ड टेंजेंट पे चला जाएगा, जिसमें हो सकता है कि वो बिहेवियर्स डिपिक्ट करे. विल कम बैक टू बिहेवियर्स ऑल्सो, जिसको आप कहें कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट बच्चा है, ये तो बड़ा सिवियर बच्चा है, ये तो घर में इसको रखना मुश्किल हो रहा है. तो पेरेंट्स को हम ये भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं और हम असिस्ट करना चाहते हैं इस तरह कि जी आप घर पे दीवारों पर क्या लगाइए कि उनको समझ आए बच्चों को कि जी अब मैं घर आया हूँ, मैंने लंच करना है, उसके बाद मैंने अपने कपड़े बदलने हैं, उसके बाद मैंने बाहर खेलना है. इवन बाहर खेलने का आपको हो सकता है कि उस बच्चे को क्यों देना पड़े, क्योंकि वो कंफ्यूज हो सकता है कि यार मैंने इस वक्त बाहर जाना है कि क्या मैंने इस वक्त अंदर बैठ के खेलना है. सो यू नो द स्ट्रक्चर that an autistic individual needs cannot end at school. It has to be carried over at home. I believe when I was talking about behaviors that no child ever acts out. Every child is only reaching out. Basically, अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल घर जाके आपको ठुड्डे मार रहा है, एक बच्चा चीखे मार रहा है, एक बच्चा चीज़ें तोड़ रहा है, एक बच्चा कॉन्स्टेंटली रो रहा है, आप कहेंगे तो बड़ा ज़िद्दी हो गया, बड़ा बदतमीज़ हो गया. नहीं, दैट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प. चिल्ड्रन व्हेन दे एक्ट लाइक दिस, दैट इज़ व्हेन दे नीड यू द मोस्ट. उसमें कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कहती हैं कि इस वक्त बच्चे को इग्नोर करें.
अब आप खुद अपने आप को उस जगह पे रखें कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपका बहुत बुरा दिन गुजरा और आप अपने घर आए और आपकी माँ या आपका स्पाउस या आपका नानी दादी सामने बैठी हैं और आप धाड़े मार के रोना शुरू हो जाएं, तो वो उठेंगे ना, अपनी जगह से आएंगे, आपके इर्द गिर्द अपना बाजू लगाएंगे और आपसे पूछें ना पूछें मगर वो आपके पास होंगे, वो आपको प्यार करेंगे। तो जो थेरेपी अगर ये सिखाती है कि आपने ऐसे वक्त में बच्चे को इग्नोर करना है, राइट, इग्नोर करना है जब वो इमोशनली वल्नरेबल हुआ है, जब वो रो रहा है, जब वो इस तरह की एक्ट कर रहा है, तो ऐसी थेरेपी की लाहौर ऑटिज्म सेंटर में हमने कोई जगह नहीं रखी। वी आर अ सेंटर दैट इज लविंग, वी आर अ सेंटर exactly as I said initially, the nurturing environment that we were looking for, that is what we are providing here. And mashallah, the improvement in children speaks for themselves, because once they are emotionally stable, they feel emotionally secure, they are automatically performing better. आगे मैं बात करना चाहूँगी कम्युनिकेशन की। Communication is itself a basic human right. Freedom of expression has a place in our constitution, as most of you will know. अब मुझे ये बताइए, एक बच्चा जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो बोल नहीं पाता, एक टिपिकल वे ऑफ टॉकिंग, जो जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैंने अभी जैसे बात की कि एक पर्टिकुलर टाइप की थेरेपी की लाहौर ऑटिज्म सेंटर में कोई जगह नहीं, तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी मर्जी में जो भी कहूँ। तो अगर एक बच्चा बोल नहीं पाता, उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? You may not have placed your hand physically on that child's mouth, but by not providing alternative means of communication to that child, alternatives to verbal communication, you are the human rights offender. And this is why we are trying to raise awareness for parents and to train them to accept alternative forms of communication, जिसमें अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बेसिकली जो बच्चा है वो आपसे पिक्चर कार्ड्स के ज़रिए, आपसे अपने आईपैड के ज़रिए, आपसे अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस के ज़रिए बात कर रहा है, एंड दैट इज़ एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं ना, कुछ कहने के लिए अल्फाज ज़रूरी नहीं, कभी एक आह बहुत है सब समझ जाने के लिए, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट अप्लाइज टू दीज चिल्ड्रन। एज आई सेड अर्लियर, टू अचीव द टारगेट दैट वी हैव इन माइंड, वी नीड टू debunk certain myths. Myths like autistic individuals lack empathy, myths like autistic individuals who are non-verbal are non-intelligent, myths like autistic individuals can be cured of autism, myths like autistic individuals will grow out of autism. No. Autism is a neurotype. Autism is a wiring of the brain, and autism cannot be cured. Autism is not something that can be treated. And it's going to remain a part of a person's life till they're alive. So इन myths को debunk करके ही तो हम अपना एजेंडा आगे ले जा सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पेरेंट्स के साथ भी करना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को क्योर करने की कोशिश करने के बजाय आप उनको फंक्शनल करने की कोशिश करें, आप उनको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें, आप उनको उनकी ओनरशिप लें। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की ओनरशिप लें, पेरेंट्स अपने बच्चों से प्राउड हों, पेरेंट्स अपने बच्चों को सेलिब्रेट करें। Now what we mean by that is that parents need to make sure that they are open about their children. You see, you need to make sure that you tell people that my child is differently able, my child needs different accommodations, because this is exactly the point. The more open you are, the more easily the accommodations that a particular child needs to function well will be given to that child. So be proud of them. Boost their self-confidence. Make sure that these children feel as wanted as your other neurotypical children are feeling. और एक बहुत बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये सुन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि ये बच्चे सुन भी सकते हैं और इनकी मौजूदगी में थर्ड पर्सन में इनकी बात करते हैं। दिस इज़ एंटायरली अनएक्सेप्टेबल। अब सोचें मैं कहीं बैठी हूँ और मेरे बारे में कोई कॉन्स्टेंटली बात किए जाए और ऊपर से मैं नॉन वर्बल हूँ, तो आप मेरी फ्रस्ट्रेशन
को गेज कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे होगी कि ना मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ और मेरी मौजूदगी में मेरी बात होती जा रही है, शायद वो बात सही हो या गलत हो. So this is something that should be avoided at all cost. Treat them like humans. जनरल पब्लिक से भी गुजारिश है कि अगर आपको बाज़ार में या कहीं पे कोई बच्चा ऐसा नज़र आए, कोई इंडिविजुअल एडल्ट भी नज़र आए जो आपकी परसेप्शन से अलग हो, जो आप समझते हैं कि एक 10 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेड है या एक 20 साल के लड़के से एक्सपेक्टेड है, एक 32 साल की लड़की से एक्सपेक्टेड है, अगर वो उससे फ़र्क है तो प्लीज़ उसको घूरे ना, उसके बारे में अजीब बातें ना करें, उसको पागल ना कहें, उसके माँ बाप से जाके अजीब सवालात ना करें. आप प्लीज़ चलते रहें जिधर आप जा रहे थे और उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें. Unless you are somebody who can be helpful, please don't even go near them. And while we are on the topic, I would like to clarify another thing which autistic individuals themselves want everyone to know. And that is that they prefer being called autistic and not somebody who has autism. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. पहली चीज़ तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑटिस्टिक कहने से कि ये उसकी न्यूरोटाइप है, और हैज़ ऑटिज़म ना कहने से आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो क्योर नहीं होना. क्योंकि देखें, कहते हैं कि somebody हैज़ फ्लू, somebody हैज़ कोई भी डिजीज़ की हम जो बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है. वो इंसान ये चीज़ है, दैट इज़ ऑटिस्टिक. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान को हो गई है. So this is something that they just want to clarify, and I feel it is my duty to put it out there कि ऑटिस्टिक्स की जो आवाज़ है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऑटिस्टिक बुलाइए, हमें ये ना कहें कि हमें ऑटिज़म है. ये एक बड़ी सटल डिफरेंस है. इससे बहुत सी चीज़ें एड्रेस होती हैं. और एक और चीज़ एड्रेस होती है जो मास्किंग है, कि फिर उनको अपने आप को छुपाना नहीं है, उनको अपने ट्रू सेल्फ को छुपाना नहीं है. वो जो हैं वो ही वो बाहर दिखाई देंगे. To wrap up, I would like to tell you a bit more about our larger agenda about raising awareness and claiming public spaces, as I have been saying constantly. Though we as an initiative and the center itself are only a little over a year old, we have managed to create successful partnerships internationally and locally to further our agenda. Concordia University, Canada is one such bright feather in our cap, where they have signed a memorandum with us to have various placements called practicums at our institute. And currently we have an art therapy internship program going on where our children are greatly benefiting. Further, we have outreach partnerships with GAFO, Funko, Beacon House School System, and Universal Cinemas. And also Chuktai Lab and Punjab Stadium have been forerunners in helping us achieve our agenda of acceptance and claiming public spaces, because they have Chuktai Lab sponsored our Autism Acceptance Marathon, and the Punjab Stadium gave us the whole stadium, access to the stadium to take our children there and to hold our marathon at their premises. Children who were not even able to run half a kilometer ended up completing almost all of the 100-kilometer marathon, and that in itself is a huge achievement for them. We want this initiative to become a center of excellence for autism and autistic individuals, and to that end, we require your love, your acceptance, and your prayers. Thank you so much.